Hare Krishna. So let's start with small little Mangalacharan. Hopefully all of you are well acquainted with Mangalacharan. There is no new face today joining. So still I will speak and you can also repeat after me. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. तस्मै श्री गुरुवे नमः। Jai Shri Krishna Chaitanya जय श्री कृष्ण चैतन्य Prabhu Nityananda Shri प्रभु Advaita नित्यानंद Gadadhara Srivas श्री Adi Gaur अद्वैता गदाधर Bhakta Hare Krishna वासादि Hare गौर Krishna भक्तवृंद Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare राम राम हरे हरे Hare Krishna. So today I'm just sharing this particular screen. What we are going to discuss today. This is Bhagavad Gita. We have started introduction and we are going to discuss these all stuff today. We'll have review and after that we'll have what is actually the essence of Vedic knowledge, Bhagavad Gita, the spirit of Bhagavad Gita, and historical record of Bhagavad Gita. Then we shall chant the holy name. And one thing I just forgot to write. And we'll have today's special Deep Dan. Haribol. So we have special Deep Dan today. The virtual Deep Dan. So it's upon person to person how much they are able to make it real. So everything is there, then everything can be real. So review. So some of you might have attended, maybe some of you have attended the previous session. तो पिछले सेशन में क्या क्या डिस्कशन किए थे, तो उसमें से कुछ पॉइंट आप लोग अगर बोले तो बहुत अच्छा होगा. Some few things if you can write down and you can unmute yourself and speak, that will be better. Yes. So please raise the hand if you want to say something and please speak out. Okay. Yes, so we have discussed about the who is Guru, who is the spiritual master, and we have initial sloka as well, like Om Ajnanatimirandhasya. These slokas we have. So what is the role of Guru in our life? So he actually removes the dark side from our life and put brightness in our life. So that is yes, that is the good. Correct. Very nice. Yes. Any more point? Ananta, you want to say? Or someone else can also add into it? Yes. Okay, so even in the Telegram group, you can go and you can see the posters are still there. So you can get some ideas. What are the things we discussed? क्या चीज हम लोग डिस्कशन किए थे, तो उसमें है पहले से. तो still, let's go ahead with our today's session. So these are all things we discussed. We discussed what is actually to Mangalacharan. मतलब किसी भी चीज का शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण से करते हैं. तो ये वैदिक संस्कृति है. किसी भी चीज का शुरुआत करना है तो मंगलाचरण से करते हैं ना. तो ये हम लोग अपने प्रत्येक दिन के दिनचर्या में भी इसको लगा सकते हैं. कोई भी काम शुरुआत करें तो मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे तो सफलता निश्चित है. किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि क्या पर्पज है उसका, उसको हम लोग आसानी से अच्छे से समझे पहले. तो उसके बाद उसमें सफलता बहुत निश्चित है. मंगलाचरण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य. उसके बाद स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदान्तिकम. तो ये वाला जो मंगलाचरण है, दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव एक्चुअली फॉर आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो हमने देखा था हु इज श्रीमती राधा रानी, हु इज कृष्णा,
who is Gaurang Mahaprabhu, who is spiritual master, and who are the Vaishnavas, भक्त लोग कौन है, वैष्णव कौन है। तो सब कुछ हमने देखा था। कैसे देखा था कि वैष्णव वो है जो कि दूसरों को दुख को देख के दुखी होते हैं, वो उन्हें वैष्णव कहते हैं, और वो कभी भी अभिमान को प्राप्त नहीं होते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो कि अन्यों के जीवन में हमेशा प्रकाश लाने की चेष्टा में तत्पर होते हैं, और जो प्रकाश लाते हैं हमारे जीवन में, जो प्रकाश लाए हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है। गु प्लस रू, गु मतलब अंधकार, रू मतलब अंधकार को हटाने वाला व्यक्ति, गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने देखा था। भगवान श्री कृष्ण कौन है, सब लोग जानते हैं, फिर भी नहीं जानते हुए भी नहीं जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की महत्ता को। और उसके बाद श्रीमती राधा रानी के बारे में ब्रीफ में हल्का सा टच किया, और who are the Vaishnavas, वैष्णव। सॉरी, चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये हो गया आज का रिव्यू। लेट्स गो अहेड टू भगवद गीता। सो ये जो भगवद गीता है, so I just sent in Telegram group that PDF around maybe around 4 or 5 hours before I sent PDF. तो अगर आप लोग उसको पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है। Like before that I just want to know like how many of you read it. Like you can just, if you read it then please write RED. Yes, someone is raising hand. Rahul Prabhu is raising hand. Yes, read. Okay, Nitish Prabhu read. Yes. So thank you so much for reading that. So it will be very easy for us. Before that, if you read it, the particular section what we are going to discuss, तो बहुत आसान होता है चीजों को समझना, ग्रास्प करना, है ना। तो उसमें इसी 3 चीजों के बारे में वर्णन है। क्या है कि कैसे भगवद गीता है सारे वेदों का सार है। भगवद गीता जो है कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है, कोई सामान्य दर्जे का किताब नहीं है। सारे वेदों का ये क्या है, सार है। कैसा सार है? जैसे कि गाय दूध देती है, गाय तो दूध ही देती है, तो गाय का जो सार क्या है वो है दूध। गाय का सार क्या है? दूध। अगर गाय है जो कि दूध ही नहीं देती तो उसका क्या मतलब? उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बोला गया है भगवद गीता इज आल्सो नोन एज गीतोपनिषद। इट इज द एसेंस ऑफ all the Vedas. It is essence of all the Vedas. That Srila Prabhupada says here, you are able to see. Bhagavad Gita is also known as Gita. It is essence of all Vedic knowledge and one of the most important Upanishads in Vedic literature. So इस तरीके से जो भगवद गीता है सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का सार है ये भगवद गीता। तो ये गीता के महात्म्य में इसका वर्णन है। शायद आप लोग एक मंत्र सुने होंगे। क्या मंत्र है? सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। तो सभी उपनिषद को अगर गायों से तुलना की जाए, सभी उपनिषदों को अगर गायों से तुलना की जाए तो दोग्धा गोपाल नंदन। और गाय को दुहने वाले कौन है? गोपाल नंदन, मतलब कि नंद बाबा के पुत्र, गोपाल के पुत्र, गोपाल नंदन। और उसके बाद बोला गया है कि अर्जुन जो है वह है पहला बछड़ा। अर्जुन जो है पहला बछड़ा। और उसके बाद जो दूध है जो गोपाल निकाल रहे हैं, वेदों के सभी उपनिषदों का जो सार है वह है क्या? वह है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता है। और बछड़ा जो है वो पूरा का पूरा दूध नहीं पीता है कभी भी। शायद आप लोग जानते होंगे आजकल तो लोग बछड़े को कुछ पीने ही नहीं देते, मार ही देते हैं या फिर कसाई खाने में फेंक देते हैं। लेकिन बछड़ा जो होता है वो दूध का पहला भोक्ता वही होता है। दूध का पहला, गाय के दूध का पहला जो कस्टमर है या फिर जिसके लिए वो देना चाहिए, मतलब कि जिसके लिए बना हुआ है वो है बछड़ा। लेकिन बछड़े के लिए ही न बना है बल्कि सारे जगत के लोगों के लिए गाय का दूध बना है। इसलिए सभी जगत के लोगों के लिए गाय क्या है? वो माँ है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही वेल अंडरस्टूड है कि हाउ काउ इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, जो कि वेदों के हर एक पन्ने में, हर एक पहलू में, हर एक
उदाहरण में गायों का जिक्र आता है, लेकिन अभी स्थिति हमारी ऐसी है कि उन गायों को हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते, कोई पालना पोसना नहीं, पोसना नहीं चाहता गायों को। गाय के बदले कुत्ते पोस सकते हैं, लेकिन गाय नहीं पोसेंगे। और दूध खाएंगे पाउडर वाला दूध, वही पाउडर में पता नहीं कौन सा दूध, और अपने को सोचेंगे बहुत एडवांस्ड है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, लेकिन सोचते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस्ड हैं। तो ये जो गाय है वो है पूरा वेदा, सर्वो उपनिषदो गावो, सभी वेदों को बोला गया कि गाय है। और दुग्धा गोपाल नंदन है, जो कावड़ बॉय है वो है कृष्ण, ऑफ कोर्स कावड़ बॉय कृष्ण है। और सभी जीवों के लिए वो दूध निकाला गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपनिषदों को, वो है भगवद गीता। उपनिषदों का जो दूध है, उपनिषदों का सार है, तो है श्रीमद् भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन है। उसके बाद दूसरा सेक्शन इसमें बताया गया है स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, स्पिरिट मतलब क्या होता है, भगवद गीता को किस तरह लिया जाए, भगवद गीता को किस तरह से पढ़ा जाए। ऐसे बहुत सारी भगवद गीताएं मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ भगवद गीता आर एक्चुअली देयर इन द मार्केट। लेकिन पिछले 5000 साल बीत चुके हैं पीछे, जब से भगवान श्री कृष्ण बस रिसेंट हिस्ट्री में इस भगवद गीता को दिए 5000 साल हो गए। लेकिन अभी तक मुश्किल से, मतलब कि ऐसे भगवद गीताओं को पढ़ के और उनके कमेंट्री को पढ़ के भक्त लोग बने। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को यथा रूप लाया, एज इट इज के रूप में, उसके बाद क्या हुआ कि एक रिवोल्यूशन आया, पूरे चेतना में लोगों का रिवोल्यूशन आया। वो क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। सब लोग भगवद गीता को समझ सके, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उसी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, कोई भी उसमें ऊपर नहीं चाहिए। इसलिए भगवद गीता का नाम नहीं दिया भगवान प्रभुपाद ने, भगवद गीता एज इट इज। आजकल बहुत सारा इधर उधर का कोई भी आ जाता है, एरो गैरो नथु खैरो, और अपना भगवद गीता निकाल देता है। एक महाबेवकूफ व्यक्ति एक भगवद गीता निकाला, उसका नाम है माई गीता। अरे इडियट कहीं के, तुझे तेरा अपना गीता निकालना था तो भगवद गीता को टच क्यों कर रहा है? सबसे पहला बात है। तो भगवान श्री कृष्ण को तो जहां पे प्रत्येक पन्ने में लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच, वहां पे वो अपना मीनिंग डाल रहा है। तो आप पकड़ो ही मत, अगर आप अपनी गीता निकालें तो अपनी गीता खुद बनाओ, सारे श्लोक खुद बोलो गाओ, तब कोई बात है। लेकिन जो ओरिजिनल भगवद गीता है उसको लेके सब लोग अपना अपना उसमें मंतव्य डालते हैं, क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं, बस फ्री में फोकट में फेमस बन जाना है अपना। क्योंकि भगवद गीता बहुत ही लोकप्रिय है, और उसके ऊपर कुछ भी बोल दे टेढ़ा मेढ़ा और कुछ अटपटा सा ऐसा बोले कि जो पहले कभी लोग बोला नहीं, मतलब कि हो सकता है कि 4th क्लास 5th क्लास कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जिसे जो किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन गीता के नाम पे हम अपनी मार्केट चलाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आएंगे फ्यूचर में। तो भगवान के भक्तों का मतलब कि यही मतलब तात्पर्य होना चाहिए कि ऐसे लोगों की जो ये दुष्प्रचार है उससे जनता को कैसे बचा के रखें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि भगवद गीता यथावत, भगवद गीता एज इट इज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। तो इस प्रभुपाद जी का मिशन था कि भगवद गीता को एज इट इज प्रेजेंट किया जाए। तो ये हुआ भगवद गीता में, ये तात्पर्य आपके सामने ला रहा हूं, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। एक मिनट, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। हरे कृष्ण। तो स्पिरिट ऑफ भगवद गीता इज मेंशन इन भगवद गीता इटसेल्फ। भगवद गीता में ही स्पिरिट बताया गया। भगवद गीता क्या स्पिरिट है, भगवद गीता के बाहर नहीं है स्पिरिट। वो क्या है कि भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उसमें दर्शित किया गया है। तो उसको जैसे भगवद गीता में बताया गया उसी तरीके से समझना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्यों ऐसा समझ में नहीं आएगा? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई मेडिसिन खाना है आपको, तो मेडिसिन खाने के लिए
तो आपको पहले एटलीस्ट उस मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ जो लेबल है उसको पढ़ना पड़ेगा और उसके अनुसार खाना। वी कैनॉट टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल or the direction of a friend. It must be taken according to direction on the label or the direction given by a physician. Similarly, Bhagavad Gita should be taken or accepted as it is, directed by the speaker himself. तो या तो आप ऑथोरिटेटिव प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर से के सलाह से, प्रिस्क्रिप्शन से आप भगवद गीता को पढ़िए, मतलब कि मेडिसिन लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट उसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है उसके अनुसार पढ़िए, भगवद गीता के अनुसार। लेकिन जनता के कुछ मूर्ख जनता के मूर्ख नेतागण इसको अपने मन से बेढंग रूप से प्रदर्शित करते हैं और खुद भी नरक जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को तो लेके जाते ही। तो हमें डॉक्टर से, मतलब कि जो ऑथराइज्ड जो जानकार हैं, वैदिक नोअर्स, उनसे समझना चाहिए। वो कौन है? यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, Lord Sri Krishna is the supreme personality of Godhead, as is confirmed by all great acharyas, spiritual masters like Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and many other authorities of Vedic knowledge in India. और भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में अपने आप को प्रदर्शित किए कि कैसे भगवान है। सारी विभूतियों का वर्णन करने के बाद बोल रहे हैं, अर्जुन क्या मुझे बताइए कि आप कैसे इन सारी विभूतियों के साथ पूरे संसार में आप व्याप्त हैं। तो भगवान ने उनको क्या दिखाया? दर्शन दिया पूरे विश्व रूप का, कैसे वही पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त है, कण कण में वो बसे हुए हैं, सारी शक्तियां उन्हीं से उद्भूत हो रही है। तो उन्होंने बस डायलॉग ही नहीं दे दिया, बल्कि उनको प्रदर्शित किया। भगवान कई जगह पे अपने बारे में बता रहे हैं, ऐसे कोई अपने बारे में बताना नहीं चाहता है, लेकिन भगवान को बताना पड़ रहा है क्योंकि जनता इतनी अंधकार में है कि अंधकार में होने के कारण उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में इतने सारे दुख हैं, इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, हटा कैसे सकते हैं जीवन के दुखों को। तो भगवान को स्वयं आके भगवद गीता देना पड़ता है, स्वयं आके। तो ये भगवान पहली बार भगवद गीता नहीं दे रहे, पहली बार ये भगवद गीता भगवान नहीं दे रहे। श्रीमद् भागवतम, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, हर बार जब भगवान आते हैं संसार में, ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में, तो कम से कम एक बार वो भगवद गीता देते ही हैं, ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में, और उससे भी ज्यादा प्रत्येक मनवंतर में अपने अन्य अवतारों से वो भगवद गीता को देते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवद गीता तो बस 5000 साल पुरानी है, क्योंकि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, जो कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये जो भगवद गीता है इसका ज्ञान मैंने करोड़ों साल पहले सूर्य देव को दिया था, जिसका नाम है विवस्वान। सूर्य देव विवस्वान को मैंने इस ज्ञान को दिया था करोड़ों साल पहले। भगवद गीता के 4थे अध्याय के पहले से 3रे श्लोक में इसका वर्णन आता है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो यह हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता इज टाइमलेस, इसका कोई समय नहीं है कि भगवद गीता आज का है। कुछ लोग मूर्ख लोग बोलते हैं अरे भगवद गीता तो आज की है ना, उससे पहले तो वेद थे, और वेद को समझ के हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता, पहले से ही सारे वेदों में लिखा हुआ है, पुराणों में भगवद गीता का गुणगान किया हुआ है कि अगर वेदों के सार को समझना है तो भगवद गीता समझिए। तो भगवद गीता इज टाइमलेस एंड प्रायर टू अर्जुना वाज गिवन टू विवस्वान। अर्जुन को देने से पहले इस भगवद गीता को विवस्वान को दिया गया। विवस्वान मतलब कि सूर्यदेव, सन गॉड का नाम है विवस्वान, सन गॉड। कितने साल पहले दिया गया था? 13 करोड़ साल पहले, कम से कम 13 करोड़ साल पहले भगवान ने विवस्वान को यह ज्ञान दिया था, भगवद गीता, एग्जैक्टली सेम श्लोकास। उसके बाद इसी ज्ञान को सूर्यदेव ने अपने पुत्र को दिया, विवस्वान मनवे प्राह। सो सूर्यदेव का पुत्र है विवस्वत मनु, उसको उन्होंने कम से कम 12 करोड़ साल पहले दिया। उसके बाद मनु ने अपने पुत्र को दिया जो कि सूर्य वंश के राजा थे, उनका नाम है इक्ष्वाकु, जो कि त्रेता युग के बिगनिंग में शुरुआत में आए थे। तो त्रेता युग का बिगनिंग अगर आज से जोड़ा जाए
तो होता है 20,05,000 साल। तो 20 लाख, कम से कम 20,05,000 साल पहले इसी भगवद गीता को मनु ने इक्ष्वाकु को बोला। और इस तरीके से एक राजा के बाद दूसरा राजा, उसके बाद तीसरा राजा, इस तरीके से भगवद गीता का ज्ञान वो क्या हो रहा था, आ रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ, सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। सो काल के प्रभाव में धीरे धीरे जो जो साइंस है वो विलुप्त प्राय हो गया। तो जैसे ही होता है ये विलुप्त प्राय हो जाता है, तो भगवान ने खुद को वादा कर चुके हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, जब कभी भी धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। और भगवान आके इस भगवद गीता को उन्होंने बताया। तो ये है साइंस ऑफ the life. Everything is there in Bhagavad Gita, but it's just a beginning, just ABCD. Bhagavad Gita is just ABCD of the complete science, which is actually it's mentioned in the the cream of whole Vedanta. That's called Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम का बस ABCD है। तो लेकिन लोगों को वही पता नहीं है, अंधकार में घूम रहे हैं इधर से उधर, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे भवदुस्तारे कृपया पाहि पारि मुरारे। बस इसी नॉलेज को नहीं प्राप्त करते हुए न जाने कितने सारे जन्मों को लेते हैं और कितने सारे योनियों में घूमते हैं और घूमते ही रहते हैं, बस घूमते रहते हैं। तो ये है साइंस ऑफ भगवद गीता, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बता दें कि जो भगवद गीता है ये कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है, ये पूरा कालातीत है। मतलब कि इसको काल के चक्र, काल के अंदर नहीं रखा जा सकता है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे चालू हुआ था, सॉरी टाइम t इक्वल टू t1 पे चालू हुआ था। देयर इज नो टाइम व्हेन द भगवद गीता वाज नॉट देयर। लेकिन धीरे धीरे लोगों में उसका जो संस्कार है या फिर उसका जो प्रचलन है, उसकी जो अवेयरनेस है, जब वो कम हो जाती है तो उसमें भगवान स्वयं आते हैं या फिर अपने अवतार को भेज के वो उस भगवद गीता को फिर से प्रचारित करते हैं। तो यह है भगवद गीता का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो भगवद गीता कोई मिथ नहीं है, भगवद गीता कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है, या फिर भगवद गीता कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है। भगवद गीता कोई जितने बार पढ़ता है उतने बार उन्हें पता चलता है कि नए से नए रियलाइजेशन प्राप्त होते हैं। तो ये पर्टिकुलर श्लोक है जो कि 4 चैप्टर 1 से 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रक्तवान हम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुषा कालेने महता योगो नष्ट परंतरा। इस तरीके से परंपरा से ये ज्ञान राजर्षियों के माध्यम से एक राजा के दूसरे राजा, इस तरीके से आ रहा था। लेकिन सकालेने महता, काल के प्रभाव से योगो नष्ट परंतप, योग जो था वो भगवान से जोड़ने की जो योग है, क्रिया है, नष्ट परंतप मतलब कि वो नष्ट प्राय हो गया था। हे परंतप, हे अर्जुन, वो नष्ट हो गया था। तो उसी ज्ञान को मैं दे रहा हूं। स एवायम, स मतलब कि वही, एवायम उसी ज्ञान को मयाते अद्य, मेरे द्वारा आज। भगवान ने बस कुछ मतलब 1 घंटे में पूरा भगवद गीता दे दिया था, 1 या 2 घंटे में। 18 दिन का लड़ाई था, लेकिन 1-2 घंटे पूरा का भगवद गीता दे दिया। लेकिन हमारा 1 घंटे में एक श्लोक भी खत्म नहीं होता है और समझ में नहीं आता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि स एवायम मयाते अद्य, हे अर्जुन, उसी ज्ञान को जो मैंने 13 करोड़ साल पहले सूर्य देव को दिया था, उसी ज्ञान को मैं आज में तुम्हें देने जा रहा हूँ। स एवायम मयाते अद्य, अद्य मतलब आज। योगा प्रोक्तः पुरातनः, योग, उस योग को पुरातन मतलब बहुत ही प्राचीन, अति प्राचीन योग को मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं। योगा प्रोक्तः पुरातनः, उस ज्ञान को, उस योग की प्रक्रिया को मैं पुरातन, सबसे पुराने योग की प्रक्रिया को मैं, हे अर्जुन, मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं। क्यों देने जा रहा हूं? यहाँ पे भक्तो सी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, तुम मेरे सुहृद हो, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। और अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को भगवान अपना सबसे प्रिय चीज बताते हैं और सबसे गुह्य चीज बताते हैं, रहस्यमय चीज बताते हैं।
रहस्यम ही एतद उत्तमम, ये सबसे बड़ा रहस्य है हे अर्जुन, और एतद उत्तमम मतलब कि सबसे उत्तम है। उत्तम मतलब कि उससे ऊपर कुछ नहीं। उस उत्तम का दूसरा मीनिंग होता है उत मतलब ऊपर, तम मतलब अंधकार। जो चीज अंधकार से पूर्ण रूप से ऊपर है उसको कहते हैं उत्तम। ऐसे ऐसे लोग लेकिन यूजली बोलने के लिए ऐसे कुछ ही बोल देते हैं, उत्तम, हाँ बहुत उत्तम है, अति उत्तम है, लेकिन तम वाले चीज को ही बोलते हैं उत्तम है। तो अगर उत्तम शब्द का अगर सही में अगर समझा जाए, उत्तम मतलब कि जो कि अंधकार से ऊपर का चीज है, तो ये भगवत गीता जो है ये उत्तम साइंस है, उत्तम योग का साइंस है। There is no darkness into it. There is no cheating into it. There is no chalava into it. It's practical, transparent yoga science that Krishna actually had invented back again 5,000 years before to impress upon all living entities. सभी जीवों के ऊपर ये उत्तम रहस्य को भगवान श्री कृष्ण प्रदान करने के लिए अवतार लिए थे, और उस उत्तम रहस्य को फिर से लोगों को अच्छे से समझाने के लिए हाथ पकड़ के भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण फिर से चैतन्य महाप्रभु में आए। तो इस तरीके से आज हम लोग यहीं पे अपना जो ये तीन टॉपिक जिसका हमने डिस्कशन किया उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या क्या हमने देखा? सो दीज आर द थिंग्स वी सॉ। लेट मी क्लोज दिस डाउन नाउ। Okay, so these are things we discussed. How Bhagavad Gita is the essence of Vedic knowledge. What is spirit of Bhagavad Gita? Essence of Vedic knowledge is just like, because Vedic knowledge is as vast like anything. मतलब sky is the limit for Vedic knowledge. मतलब सारे ज्ञान है उसमें, लेकिन ज्ञान का जो सार तत्व है वो है भगवद गीता में। क्योंकि अगर सारे वेदों को कोई पढ़ा जाए तो वो ना आदि मिलेगा ना अंत मिलेगा। जैसे आयुर्वेद को देखिए, आयुर्वेद में अनलिमिटेड डिजीज के बारे में, अनलिमिटेड मेडिसिन के बारे में सब कुछ चर्चा, लेकिन मेडिसिन खाने के समय में उसमें ये भी चर्चा है कि एक मंत्र का पढ़ना पड़ता है, आयुर्वेद में पढ़ा जाता है डॉक्टरों को कि मैं ये दवा खा रहा हूं, लेकिन दवा का जो एफिकेसी है, दवा जो कार्य करेगी वो डिपेंड करता है गोविंद के ऊपर। तो ये आयुर्वेद का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। तो ये आयुर्वेद में है। सारे वेदों के अंततोगत्ता में जो कंक्लूजन में आता है वही है कि कैसे लोगों को किसी न किसी तरीके से गोविंद या नारायण कृष्ण के साथ कनेक्शन करें। जैसे कर्म कांड में भी देखिए, दुर्गा, काली माता, जितनी भी देवी देवताओं की पूजा होती है, शुरुआत में ओम ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः इस पर्टिकुलर श्लोक का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि जीवों का कनेक्शन उसके परम पिता से हो, तभी उसके मनुष्य जीवन का कुछ न कुछ या फिर मीनिंग निकल के आएगा। तो लेकिन भगवत गीता में पूरा का पूरा कंक्रीट कंडेंस्ड ये साइंस है भगवान और जीव के बारे में। सुप्रीम लॉर्ड, द साइंस ऑफ सुप्रीम गॉड एंड द जीवा, द लिविंग एंटिटीज। सो दिस इज द कंप्लीट आई मीन टू से द व्हाट्स कॉल्ड द एसेंस। देयर इज नो क्या बोलते हैं उसको, एसेंस मतलब इज लाइक कंसंट्रेटेड थिंग। वेदास में एसेंस है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक बटर इन द मिल्क, चारों तरफ में, लेकिन बटर निकालने के बाद वो कंडेंस हो जाता है। तो भगवद गीता इज लाइक बटर ऑफ द मिल्क इन वन सेंस, यू अंडरस्टैंड। सो वी saw this what is called spirit of भगवद गीता। भगवद गीता का स्पिरिट क्या है उसको हमने देखा। भगवद गीता का स्पिरिट है कि भगवद गीता में जब कभी भी कृष्ण बोल रहे हैं तो वहां पे ये नहीं बोला जाता है कि कृष्ण उवाच। पूरे वेदों में अगर छान मार लीजिए, कहीं भी कोई भी व्यक्ति बोला तो उस व्यक्ति का नाम से बोला गया है कि अर्जुन उवाच, रुद्र उवाच, भगवान शिव बोले तो रुद्र उवाच, ब्रह्मा जी बोले तो ब्रह्म उवाच। लेकिन जब कभी नारायण या फिर कृष्ण बोलते हैं तो वहां पे उनका नाम नहीं बोला जाता है, बल्कि बोला जाता है श्री भगवान उवाच। तो ऐसे बहुत सारे जो मतलब कि विभ्रांतकारी लोग अभी भी संसार में घूमते हैं, वो अपनी फेम को बढ़ाने के लिए भगवद गीता को लेते हैं और उसके ऊपर कमेंट्री लिखते हैं। जैसे माय गीता, योर गीता, गीता इन द व्यू ऑफ
particular Mahatma, so on and so forth. और वो 5-6 साल के बाद फिर वो प्रत्येक लाइब्रेरी में मिलेगी, बस डस्ट लगेगी ऊपर में और कोई पढ़ता नहीं उसको। तो ये है, दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का स्पिरिट है कि हम भगवान श्री कृष्ण को उसी तरीके से समझे जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। भगवान अपने बारे में अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि हे भगवान आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है। तो हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, दिस इज एक्चुअली स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। और ये सभी आचार्यों के द्वारा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, सभी आचार्यों के द्वारा ये पूर्ण रूप से निर्णीत है और सभी लोगों को ये पता है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग आते हैं जो कि कुछ समय के लिए फेमस होना चाहते हैं और होते हैं, और बहुत सारे मूर्ख लोगों का वो राह भटकाते हैं। तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा सावधान होना चाहिए। सो टू नो दैट व्हाट इज स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का ऐतिहासिक पहलू क्या है? भगवद गीता का ऐतिहासिक पहलू यही है कि भगवद गीता इज टाइमलेस, इसको किसी टाइम में नहीं बांधा जा सकता है। और भगवद गीता को बस 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को नहीं बताया, बल्कि उससे ही पहले भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। सूर्यदेव का नाम विवस्वान है, आप लोग भगवद गीता में पढ़ सकते हैं। और कम से कम 13 करोड़ साल पहले इसी साइंस को भगवान ने सूर्यदेव को बताया, और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, जो कि सूर्यवंश के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ इक्ष्वाकु है। और इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को इस तरीके से बताया कि वो राजर्षियों के माध्यम से वो एक के बाद एक परंपरा के अनुसार आ रहा था, लेकिन रास्ते में बहुत साल बीतने के कारण क्या हुआ कि वो भगवद गीता का जो साइंस था, विज्ञान था, वो पूर्ण रूप से शिथिल या फिर क्षीण होने लगा। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण फिर से आए, क्योंकि भगवान हमेशा जब भी धर्म की हानि होती है तो आते हैं। उन्हीं का वादा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो this was today's discussion. So thank you so much for being with us. Now we have a separate, a very special 2 more sessions. So one is chanting of holy name, and we have a special deep dan in very, very auspicious month of Kartik. Haribol, if you are feeling enthusiastic to go ahead with these 2 sessions, so please quickly write down in the chat box ENTH or ENT, so that I could also get some little inspiration seeing you all. So if you are enthusiastic, please write down ENT quickly. We'll go ahead with our next session, chanting the holy name in special Deepdan. Okay, thank you so much, all of you, for writing this. Okay, I have to see Rahul, Amia, Prabhu, Anand Prabhu, Ankit Prabhu, Ankit Kaushal. Okay, Nitish, Ishant. Okay, thank you so much, all of you. So quickly we'll go ahead with our session chanting, then we'll have Damodar Arati, quick Damodar Arati. Okay, so we like to welcome Ankit. So all of you know Ankit Kaushal is from Triple IT Kolkata. So Hare Krishna. Hare Krishna. So for your help, I will chant the holy name. Jai Shri Krishna Chaitanya. Please repeat after me. If you remember, then it's fine. Otherwise, still. So please repeat after me. Jai Shri Krishna Chaitanya. चैतन्य Prabhu Nityananda. Shri Advaita. Gadadhara. Sivas Adi. Gaura Bhakta Vrinda. Okay. So now we'll chant Hare Krishna Mahamantra. Hopefully everybody of you know about what's called Hare Krishna Mahamantra. So we'll chant it. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram. Share with you all the Damodar, the picture of Damodar. So here it goes.
Okay. Krishna Krishna. So here it goes. So hopefully all of you are able to see Damodar. If you are able to see, please write down yes. So this is the person, his name is Krishna and his cute name is Damodar also. And she is Mother Yashoda. She is very, very dear mother of Krishna. So in this very month, this little Krishna, who is so much naughty, is being caught very angrily by Mother Yashoda. And he is being now binded up. And you see, he is being bound up into the backside. You are able to see here. This is called grinding mortar, मतलब ओखल. ओखल कितने लोग देखे हैं घर पे? किसी के घर पे ओखल है? So शायद आप लोग देखे होंगे. ओखल एक ऐसा मशीन है जिसमें धान या फिर कुछ डाल के उसको कूटते हैं तो धान का छिलका निकल जाता है. तो उसमें कृष्ण को बांधा गया था. So thank you so much for being very much enthusiastic. So now this is the lamp. I think you are able to see this lamp very nicely. And I have a matchstick with me. Okay. So with this matchstick, I will lit this. So you can just see that, as well as you can touch my hand. By touching hand also, the result of doing the same activity is actually accrued. So Rahul Prabhu has raised the hand. If you want to say something, please say. Rahul Prabhu, unmute yourself and say. आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. तो ये है मेरे पास ये लैंप. दिख रहा है लैंप? नहीं प्रभु, हैंड टच कर रहे थे. मेरा लैंप नहीं दिख रहा है? Are you able to see my lamp? Haribol. Yes, if you are Prabhu. able to see, then please write down. Hare Krishna. Okay. So this is my very cute lamp, and here is very cute Krishna in the form of Damodar. So we will offer this lamp to Lord Damodar. So how we'll offer? 4 times we'll put rotate clockwise at the lotus feet. So 1, 2, 3, 4, 2 times on waist and 3 times on his face. 3 times on his face and 7 times the whole body. Namamishwaram Satchidananda Rupam Lashat Kundalam Gokule Brajamam Yashoda Bhyaloka Ladhavamanam Paramrishtam Atam Tatatrutyego. Yeah. So this is over now. So thank you so much, all of you, for coming and being the part for today's session, Bhakti Meetup 5. Hopefully all of you are faring well, doing well at your place, studies and working and preparing whatever. So I like to pray, and we all of us together, we shall pray for all of us together in this Kartik month, that we would advance in our whatever effort or whatever endeavor we are doing actually, as well as we'll advance toward the loving relationship with Supreme Godhead Krishna in this very auspicious month of Damodar Kartik. Okay. So again, please unmute yourself. Please unmute yourself. Please unmute your
video. If you have good bandwidth, and say bandwidth, if you have good bandwidth, please unmute your video also. So that will be very nice. Okay, thank you so much. And we shall chant together Hare Krishna Mahamantra. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much, all of you. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna. We'll stop here. Thanks for this. And see, there is quiz also, so please go for that. Please do all those quiz, and things will be again updated back by Mohan Prabhu. Hare Krishna.